All right. So here we are going to talk about why change needs to be managed. Okay. That is an important question to be answered. कि क्यों जरूरी है चेंज को मैनेज करना? क्या होगा अगर हम चेंज को मैनेज नहीं करेंगे? So any thoughts, any inputs on that? We discussed steps to build organizational culture yesterday, and we discussed about those steps जहाँ पे assessment, awareness, alignment and adaptability था. We are moving, ahead from there. So any thoughts? So, Why is a change in the organization which we plan to bring needs to be managed? Yeah, go I'll ahead. give an attempt. So Mhm. there are different risks that the company would be facing. No, we have different types of risks that we have already spoken about in the past. Mhm. So to adapt to the market strategies, the present market strategies, and the innovation that is happening, frequently in terms of Mhm. technology or in terms of Mhm. whatever, different areas of an organization, the company has to adapt to that market strategy so that it is always there within the tag of survival of the fittest. So it has to go through that change management process to ensure that it's staying alive in the market. That is one. Mhm. Second, as far as HR perspective is concerned, people inclusion, diversity, and inclusion is what we were talking about. So Mhm. a lot of innovative ideas are being brought in the company to ensure that the manpower is the employee turnover is low. People don't leave the organization so easily, and people adapt to good working conditions. This is my idea. Okay, very nice. Yeah, it resonates the basic idea of the change management. Nice. Anybody else? Yeah, Kaushal, I also second, what Siddharth said. If an organization it is not changing as per the market requirement or the changing dynamics of the market, Mm-hmm. so there will be a time that it will become obsolete, right? So we have many examples, especially if I remember the mobile companies, like we have heard of Nokia, once a number one company, but they didn't change as per the market. They didn't adopted the Android system so quickly. So again, they lost their market share. The second one is the BlackBerry. Once a business phone, they projected it like a business phone and it was a business phone. Then they tried to, sell themselves as a phone of youth and a multitasking phone, and that can be used. But again, the market share that they lost, considerable market share. So they have not changed as per the market requirements, and the result is in front of us. Absolutely. Absolutely. Hang on. Very nice. So yes, companies like Nokia, BlackBerry are the classic examples of how things could go wrong if you don't manage the change, right? So aligned to that thought, let's just move ahead and I'll speak about the change management. Just a moment. Meanwhile, anybody else would like to add anything else? Any other example? Basically, managing change is required to prepare the company so that he is able to he and his employees are able to adopt the change. Basic process, because if anything which is going to get changed, the natural tendency is to resist. So you have to plan, you have to prepare, and then you have to make the people aware why this change is necessary. Okay, so you have to prepare your organization so that the adoption will be easier. Okay, and then you have to plan each and everything, and then you have to do the necessary changes, and then it should be implemented so that it is viable. The organization remains viable. So whatever we had discussed on Nokia and all, that is because they are not able to justify why the change is required, and then it has all this stuff. Take. So here, I would like to give you highlighted points wherein you could put your thoughts together that why change needs to be managed. So सबसे पहले अगर बात करें देखिए, change needs to be managed for lot of reasons. Crucial reasons हैं कि जैसे जैसे प्रोसेस चेंज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो पूरा प्रोसेस चेंज होने का होता है कई बार कॉम्प्लेक्स होता है, और
उसका काफी इम्पैक्ट बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आता है, डे टू डे ऑपरेशंस में और एम्प्लॉय के मोरल पे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है, जिसके लिए चेंज को बहुत केयरफुली मैनेज करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला तो कभी भी आप अगर एक लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, राइट, कोई चेंज आप लाना चाहते हैं, कुछ नया प्रोसेस लाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो चीज आप फेस करेंगे वो फेस करेंगे रेजिस्टेंस। पीपल विल रेजिस्ट टू चेंज, दे डोंट वांट टू चेंज। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बराबर है निहारिका? एम आई मेकिंग सेंस? सही कह रहा हूं ना? तो चैलेंज क्या है, दैट पीपल ऑफन रेजिस्ट टू चेंज ड्यू टू फियर ऑफ अननोन, अनसर्टेनिटी अबाउट कि क्या होगा, कैसे होगा, और मे बी दे आर कंसर्न अबाउट वो जो चेंज है उनके जॉब को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ये बड़ा चैलेंज है। तो इसको मैनेज करना क्यों जरूरी है कि अगर इसको हम पहले से एंटिसिपेट करके इसको मैनेज कर ले, इसको एड्रेस कर ले, वो रेजिस्टेंस को अगर हम एड्रेस करें बाय इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉइज इन द प्रोसेस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इन सारी चीजों में अगर हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो रेजिस्टेंस काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। ठीक। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है, इस जो भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन लेके आना चाहती है उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉइज के मोरल पे और प्रोडक्टिविटी पे पड़ता ही पड़ता है। बिकॉज जब आप कोई नई चीज अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं तो यू टेक टाइम टू लर्न इट। इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिप होगा, है ना? और जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जाएंगे प्रोडक्टिविटी फिर धीरे धीरे फिर टेक ऑफ करेगी। तो चैलेंज क्या है कि अगर इसको हम मैनेज नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू डिक्लाइन इन मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो इसको अगर हम मैनेज कर लेंगे तो वी कैन एनहांस द मोरल, by involving them in the process. We can address their concerns and provide the necessary support and resources, probably training materials, workshops and things like that to improve the morale. ठीक है। फिर तीसरा है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी इंपैक्ट होता है उससे, है ना? चेंज कैन समटाइम्स क्लैश विद द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कल्चर हाई परफॉर्मेंस को वो करता है, फोकस करता है। कई कंपनीज का मैंने देखा हायर एंड फायर पॉलिसी होता है, वो जितनी जल्दी जल्दी हायर करते हैं उतनी जल्दी फायर भी करते हैं, बिकॉज दे आर कंसर्न्ड अबाउट इज कि हमारा प्रोडक्टिविटी बेस्ट होना चाहिए, वी नीड टू रीच हायर लेवल। आपने देखा होगा बाइजूस जैसी कंपनी है जिसका एग्जांपल लिया जा सकता है। ओयो इज वन ऑफ द कंपनी जहां पे हाई परफॉर्मेंस कल्चर फॉलो होता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं आपको 3 महीना 4 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। तो later on when these company realize, like Oyo, I can tell because I work with them, they realize कि बॉस ऐसे काम नहीं चलेगा, मार्केट में नाम खराब होता है। तो उनका फोकस टोटली फिर शिफ्ट हुआ हाई परफॉर्मिंग कल्चर और ये जो हायर एंड फायर पॉलिसी से चेंज होके एम्प्लॉय सेंट्रिक, पीपल फ्रेंडली होना है। तो ओवरऑल चेंज, तो ये चेंज को फिर डाइजेस्ट करने के लिए भी लोगों को चाहिए। ठीक है। तो कल्चर चेंज होता है तो टाइम लगता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू दैट, आप बड़े लेवल पे उसका एक कैंपेनिंग करें। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना शुरू किया, लिंक्डइन पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि भाई हम तो बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। निहारिका, यू वांट टू ऐड समथिंग? your device is on mute, sorry. मेरे को ये आवाज सुनाई नहीं दे रहा या सबको आवाज नहीं सुनाई दे रहा? नहीं, she was on mute. Niharika, you're not audible. You gotta be loud. Log out and log in again. Okay. Meanwhile, Jigar ji, are we like resonating with the idea जो मैं yes, but of course. इसके अलावा Change is always important for the organization also, and change is very
difficult for the team members also to Absolutely. adapt to any kind of a change. So it is very important that always how you can steer the change, how you can be part of the change, and how you can align with the change, and how you can make your team members adaptable to the change. And do you think communication is an important, part of change management? Yes. Absolutely. Yes. Absolutely. Absolutely. Expectation right अगर set नहीं होती है तो it will cause a whole lot of more damage rather than doing anything else. Exactly. Lack of clear communication can lead to misunderstandings, rumors, and confusion among employees. So, change management क्या करता है? It emphasizes on effective communication strategies to ensure that जितने भी stakeholders हैं, वो ये change क्यों किया जा रहा है, उसके reason को समझें और उसके expected outcome को समझें और अपने role को पहचाने उस process के अंदर. इसलिए जरूरी है. और क्या करता है change management? Does it mitigate risks? Niharika had something to say, right? Yeah, Missed out the Niharika. floor. Yeah, go ahead. नहीं, I had a question. अभी very recently there was this 70 hours per week वाली debate that happened, right? Absolutely. This was also a kind of change in the work pattern that is expected out of the workforce. ठीक है? Although it received a lot of backlash, but eventually we are in a world that has the highest working population. तो उसमें ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि इन्फोसिस में लोग जो हैं वो ज्वाइन करना बंद कर देंगे, है ना? तो ऐसे में ओडी मतलब ओडी कैसे काम करेगा? मतलब देयर इज अ स्लाइट डिस्कनेक्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग जब ये सारी बात हो रही है, क्योंकि पर्सन जो है वो चेंज नहीं चाहता पर वो उस पर एक्सेप्टेबली वर्क भी कर रहा है, मन मार के ही कर रहा है पर कर रहा है. तो यहाँ पे ओडी का रोल नेग्लिजेंट नहीं हो जाता? ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, या मैं गलत समझ रही हूँ? नहीं, ओडी का रोल यहाँ पे एक कुशन की तरह है, समझिए कि अब जैसे आपने बोला कि अचानक से एक झटका मिला, एक स्टेटमेंट दे दिया गया जो पब्लिकली इतना वायरल हो गया. अब उसको अब्सॉर्ब करने के लिए उन रूमर्स को सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत है. उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये होना चाहिए और सबको फॉलो करना चाहिए. उन्होंने बोला था कि अगर 70 आवर्स इन अ वीक अगर हो, दैट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे लीडरशिप रोल पे जो लोग हैं, उन्होंने इस तरह से काम किया है जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है. सो जितने भी बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है बिकॉज दे रेजोनेटेड विद दैट आइडिया, क्योंकि उन्होंने पर्सनली उस कैपेसिटी में काम किया है. अगर आप इलॉन मस्क को देखो, ये तो 3-3 दिन तक सोता नहीं आदमी. ये 70 आवर्स छोड़ो, वो तो 140 आवर्स इन अ वीक काम करता है. तो जितने भी इस तरह के लोग हैं उन्होंने किया है, दैट्स व्हाई उनका ये आइडिया था. बट देन इट्स अप टू यू कि आप उस आइडिया को कैसे अडेप्ट करते हो. नाउ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल, अगर लोगों को इस तरह का सिचुएशन आता है, ओडी व्हाट दे कुड डू इज दे कुड channelize that energy or channelize that communication in a different way. They can mitigate probably act as a cushion between what is being said and how it is being implemented. कि now I understand because ये ऐसा बीच में हो रहा था तो शायद मुझे गलत समझाओ. ये बोल तो दिया, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा या सबके लिए पॉसिबल है या नहीं है, ये सबको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मैटर ऑफ डिस्कशन है. एनीवेज, लेट्स come back to can I add on this? या मिल गया. हाँ, इसमें निहारिका मुझे क्या लगता है, अगर ये बोला है तो ओडी इंटरवेंशन में ये भी रह सकता है कि can they do something like if they are working, maybe if they are working for 7 hours, how many hours, whatever the hours are, how many hours they are working from office and these many hours they can work from home also, or how they can balance this, because if we are not going to office we are saving our 2-3 hours also, correct? So this also is a communication which OD can give, if I am right. I don't know. Okay, now I get it. Got it. Thank you. Okay. एक और बेनिफिट क्या है चेंज मैनेजमेंट का? अगर हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? चेंज कई बार रिस्क लेके आता है, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा,
अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा. And because of that risk and unmanaged change, it could result in unintended consequences or negative outcomes. तो अगर इसको मैनेज कर लें, it will help identify कि पोटेंशियल रिस्क कहाँ पे है. उसके हिसाब से फिर हम सिस्टमैटिक प्लानिंग कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और उस पूरे प्रोसेस को टाइमली एडजस्ट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. तो मिटिगेटिंग रिस्क इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ओवर देयर. एंड एक और चीज हमने कल भी डिस्कस किया था कि चेंज तो आप ले आओगे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उसको सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सस्टेन करना जरूरी है. आपने कोई नई चीज लेके आया, ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद वो मर जाए. वो लोग उसको फॉलो भी करने चाहिए. तो सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स देयर. So without proper management, change can be short-lived. Organization may revert to previous states. पहले जैसा तो फिर वापस वही आ गया. ऐसा नहीं होना. तो इसके लिए क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाना की जरूरत है, जहां पे हमें इंश्योर करना है कि ये जो भी चेंजेस हैं, इट हैज टू सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इसको ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में लेके आना है ऐसा. फिर इसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीजें चेंज मैनेजमेंट का पार्ट है. एंड दिस इज हाउ अ चेंज, व्हाई दिस चेंज नीड टू बी मैनेज्ड. ये इसका आंसर था. क्लियर है? तो मेरे ख्याल से हमने 7-8 चीजें डिस्कस की. इसमें से 4-5 भी अगर आप याद रखते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू. यू कैन कोट एग्जांपल्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज कि चेंज को मैनेज करना क्यों जरूरी है. इन वजह से चेंज को मैनेज करना जरूरी है. ठीक, अब हम बात करते हैं चेंज को मैनेज कैसे किया जाता है. सो देयर आर स्टेप्स व्हिच इज देयर ऑन फिगर 37. You talk about assessing for change, prepare for change, plan for change, and implementing the change, and finally success. So we're going to talk about that. Has anybody read it? Niharika, have you read it? Any thoughts on that? How change is managed in these steps? Yes, I have read it, and I mean, these are 5 steps, but I could understand it in a way that it has 4 ways. Now, any which way, like you guys have said, that that setting the clear expectation is very important when we are going to talk about change. So, I mean, I am not going by this this diagram because that sounded a little bit hazy to me, but I understood what is written in the theory. So Okay. if I can drive my vision, okay, if I have a vision that this year my sales should be 1.2 billion, and I am able to communicate this in a manner where my team agrees with me, considering that we have taken in consideration all internal and external factors. So it will be easy to drive that change, because that might even need for others to stretch or to travel to certain client sites. Now, having said that, just by saying that I want you guys to do this, it will not work. There will, even when we are working in our current roles, and our current role will have a little bit of an extension, we might not be fully prepared. So for that, we always need a training. क्यों? क्योंकि अगर मुझे उस गोल तक पहुंचना है, मान लीजिए उस सेल्स के उस गोल तक पहुंचना है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, वहां पर कहाँ प्रॉब्लम थी, उस छोटे से लूप होल को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं. Okay. So it will. Okay. Sorry, Niharika. I'm gonna stop here. Stop you over here. See, so your thoughts are well in place. However, I wanted to stick to the what's there in the book, and help people understand there. So I am going to talk about those 5 steps. Sorry about that. To cut you short. We've got less than 3 minutes remaining. Can I just drop? Can we just drop off and re-log in again? Yes, sir. 3 minutes. अभी तो 9:32 ही हुए. नहीं, मैंने पहले start. I had
Okay. So, yeah. Steps in building OD. So if you have plan to build a strong process around organizational development, you need to build a culture where the employee should be motivated and should have the inspiration and proper reasoning to do so. Okay. Why? To bring about a change which everyone should have, wherein everyone should have a common purpose and a goal, and they should all be motivated to do the same thing for same reason. Bringing people together. इसके जो 4 स्टेप्स है इसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है असेसमेंट. ठीक है. Now suppose a company is experiencing a decline in engagement and productivity. I'll again say it. You conduct the survey, you analyze their performance through matrices, and you do a benchmarking. That's the only way you assess people, right? आप सर्वे करोगे कि क्या चल रहा है, आप इंटरव्यू करेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे फ्रॉम एम्प्लॉइज, जैसे 360 डिग्री फीडबैक होते हैं और भी कई टूल्स होते हैं, अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, challenges and suggestions. Review their performance based on KPIs and you benchmark, compare the organization's performance and practices with the industry benchmarks and best practice. आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों के परफॉर्मेंस है वो किस लेवल पे है और इंडस्ट्री किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो आप बेंचमार्किंग करते हैं और ये देखते हैं कि हमें ओडी की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो क्या करने की जरूरत है. So through assessment, the organization gains a clear understanding of its current state and areas that need attention. ठीक है. So यहाँ पे सब पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे हाउ डू दीज लिंक टू बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ये आपको देखना होता है. गोल्स, व्हाट आर द हाईएस्ट लेवरेज एरियाज टू इंप्रूव, कौन कौन से एरियाज है जहां पे आपको मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये आपको असेसमेंट से पता लगता है. एंड टू डू दैट यू हैव वेरियस टूल्स. व्हाट आर सम ऑफ द टूल्स व्हिच यू यूज? उस दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे बैलेंस स्कोर कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ, राइट निहारिका? असेसमेंट टूल्स बहुत सारे हैं. Would you like to share some of the assessment tools? Anybody? One of them is pulse surveys to analyze. Yeah. This would be an out of the blue question for me, but ये कल की क्लास में डिस्कस किए थे, where Okay. Dr. Raghavi asked this question, what is the difference between assessment and evaluation? So That's an interesting question. I wanted to know more about it, because I had a different idea, but she ended up saying something. Okay. So what is your understanding? First of all, I would like to know. Then my idea was wrong, but no, what she ended up saying, to my knowledge, was, I don't know if somebody is here who can correct me. Assessment वो बोल रहे थे कि which is going to add value to something, is assessment. So I do something which is going to bring value add to a particular process or a system. वो assessment हुआ, that's assessment. Evaluation is, I don't remember what she spoke about evaluation. So mainly evaluation was a kind of a process which I follow, on evaluating a particular system or a process. मैंने बोला था, I don't know whether it's right or wrong. Siddharth, you are actually correct. Siddharth, you are actually correct. Assessment से हमको डेटा मिलता है और उसको हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन के थ्रू टू मेक अ डिसीजन थ्रू दैट. Exactly. You are actually correct in your understanding. So assessment first से सिर्फ हमको डेटा मिलता है. Exactly. So first is I assess a particular situation and then I evaluate and then I again assess. तो वैसा चलता है क्या? नहीं, हाँ, it's an ongoing. होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ, उस टेस्ट में आपको 10 में से 9 मिलते हैं. ओके, असेसमेंट हो गया आपका. अब मुझे ये दिखाई देता है कि सिद्धार्थ की इतना मतलब इतना पढ़ता है, वो सब कुछ है, मैं इवैल्यूएट करती हूँ, उसने 1 मार्क कहाँ लूज किया. अब मुझे पता चलता है उसका देख के कि अरे दिस वाज अ वेरी सिली मिस्टेक, सो आई विल गिव यू दैट थिंग. सो प्रोबेबली मुझे लगता है कि तुमको थोड़े से और प्रैक्टिस शीट दूंगी तो हो जाएगा. करेक्ट. सो दैट इज योर इवैल्यूएशन वेयर आई एम मेकिंग अ डिसीजन suited to your individual need, that I will take a decision to map your learning journey or your work journey. That's what evaluation is about.
Perfect. Thank you. करेक्ट, वेरी वेल सेड निहारिका. सो बेसिकली असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं. असेसमेंट नॉर्मली हम लोग शुरुआत में करते हैं एक बेसलाइन बनाने के लिए कि करना क्या है, और इवैल्यूएशन हम करते हैं ज्यादातर उस जो भी हमने डिसाइड किया है कि प्लान ऑफ एक्शन, उसको लास्ट में रिजल्ट आने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने बेसलाइन बनाया था क्या उससे ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा था. इट्स लाइक दैट. सो एक तो very well said by Niharika that assessment is more data or based. Garima wants to say something. Let me finish, Garima, then you can add. So assessment is about getting the information. Evaluation is making a judgment through that evaluation. Assessment शुरुआत में करता है, evaluation जो है वो periodically होता रहता है. और basically assessment का जो focus है वो होता है कि अभी क्या चल रहा है, Where you stand, है ना, where do you stand. एंड इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस होता है कि भाई आउटकम क्या रहा, आउटकम क्या निकला, कि आगे क्या करना पड़ेगा, ओके क्या चेंज. ठीक, ये है. या गरिमा. Just like yesterday's class, so ma'am showed us one flow chart where evaluation was to and fro process, and execution, then again to evaluation. There is two-way arrows, right? So if we are talking that evaluation is the last stage where we, after executing something, we evaluate. So why again going to execution? So evaluation, that is what I feel. I mean, I am not, if I am. Is it not a cycle where I assess, evaluate, then again I do something and then assess? So it's an ongoing process, right? Yes, it's an ongoing process. Yeah. So just a question. After what Kushal said, that it is an end process. Not always. So I'll correct myself. It occurs, after the completion of any project, and it can be conducted periodically also. बीच में भी आप इसको कर सकते हैं इवैल्यूएशन को. तो बीच बीच में ना आपको प्रोग्रेस चेक करने के लिए करना होता है इवैल्यूएशन बेसिकली. ठीक है. ऑनगोइंग इफेक्टिवनेस जो आपने प्लान किया शुरू में थ्रू दी असेसमेंट, जो आपको आउट फाइंडिंग्स मिली, उसके बेसिस पे आपने जो डिसीजन लिया और आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया, उसको करना शुरू किया, तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए इवैल्यूएशन होता है. तो ज्यादातर इफेक्टिविटी लास्ट में ही चेक करते हैं आप. उसके बाद फिर कुछ चेंज करते हैं, फिर आप चेक करते हो कि अब नए चेंज के बाद फिर क्या बदलाव आया. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हाँ, लेकिन वो एक्शन लेने के बाद आप करते हो. असेसमेंट आप शुरुआत में कि स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप असेसमेंट कर लेते हो. सिंपल सी बात. करेक्ट. दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, बेसलाइन कहाँ से शुरू करेंगे. ढांचा बनाना है पहले, राइट? करेक्ट. हाँ, मतलब कहीं से तो शुरू करेंगे ना. कुछ तो मेट्रिक डिसाइड करेंगे कि भाई एक बंदे को किस पे इवैल्यूएट करेंगे बाद में जाके. तो वो जो है वो असेसमेंट से शुरू होता है, फिर इवैल्यूएशन तक जाता है. Wonderful. We can go ahead. Assessment and awareness. That's second. ठीक है. तो ये असेसमेंट हो गया. सेकंड इज अवेयरनेस. नाउ आफ्टर द असेसमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इट डिसाइड्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर चेंज. सो आपको ये पता लगा कि इस असेसमेंट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बदलाव लाने की जरूरत है. अब मैं बदलाव लाऊंगा कैसे? ऐसा तो नहीं कि मैं ओवरनाइट मैंने डिसीजन लिया, आपने एक फरमान जारी कर दिया, कल से ये सब बदल देंगे. ऐसा नहीं हो सकता. लोगों को टाइम चाहिए चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए. तो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. आप एक ग्राउंड बनाना तैयार करने की कोशिश करते हैं कि लोग धीरे धीरे उस चेंज को अडॉप्ट कर ले. तो ये अवेयरनेस इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट? इसमें आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन कैंपेन्स रन करते हैं कि भाई अब हम ये करने वाले हैं, नया प्रोसेस आने वाला है, नए सिस्टम्स होंगे, हम ये नया ऐप या ये नया टूल लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमें ये बेनिफिट होगा. तो आप उसके अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. फिर पता लग गया कि हाँ अब ये चेंज होने वाला है, फिर आप उसको ट्रेनिंग करते हैं. उसको यूज कैसे करेंगे, नया टूल आ रहा है, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यूज कैसे. स्टार्टअप्स
हाँ कह सकते हैं, but in our company, which is again a startup, we do this. We bring a new system, we create awareness, and we conduct training around it. लोग अडाप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हो बात की बात है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि स्टार्टअप्स में थोड़ा मुश्किल ही होता है. Then leadership messaging, ensuring that leaders communicate the vision of for a change and the importance of everyone's contribution. तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको. चलो फिर पहले सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसका. अवेयरनेस हो गया, उसके बाद आप क्या करते हैं? अवेयरनेस आपको पता लग गया, अलाइन करते हैं सबको. एक बार अवेयरनेस हो गई, एस्टैब्लिश्ड हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद द डिजायर्ड चेंजेस. तो उसमें क्या करेंगे आप? वैल्यूज एंड कल्चर्स को रीइंफोर्स करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे द डिजायर्ड वैल्यूज एंड कल्चर्स थ्रू वेरियस चैनल्स. पॉलिसी एंड प्रोसेस को एडजस्ट करेंगे, ट्रैवल पॉलिसीज, लीव पॉलिसीज, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, हर तरह की पॉलिसी आप उसको करेक्ट करेंगे. फिर लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे आप ट्रेनिंग एंड सपोर्ट करेंगे. क्या नए लोगों को, मतलब लोगों को अगर प्रमोट करके आपने कोई नई पोजीशन दी है तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, उसके अंदर उसको स्किल को डालना पड़ेगा. तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. तो अलाइनमेंट से क्या होता है? इट एंश्योर्स दैट एवरीवन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन understands and is committed to the common goals and values of the OD initiative जो आपने लिया है. ठीक, क्योंकि लोग अलाइन नहीं होंगे, आपने बोल दिया ये करना है, लोग करना तो शुरू कर देंगे, लेकिन वो अलाइंड अगर नहीं है तो उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे. राइट? तो अलाइन बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन फील इट. एंड फोर्थ इज अडेप्टेबिलिटी. नाउ विद alignment in place, the organization, what they do is they focus on building adaptability to sustain the change. कि आपने चेंज तो ले आया, लेकिन वो चेंज कितने समय तक जिंदा रहेगा? हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके यहाँ नई चीज आई, नया सिस्टम आया, प्रोसेस आया, कुछ टाइम लोगों ने फॉलो किया, बाद में धीरे धीरे वो ठंडे बस्ते में चला जाता है. होता नहीं होता है? कई कई ऐसी चीज होती है. वो क्यों होता है? क्योंकि अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत पुअर होती है. उसकी वजह से क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा सा डिमिनिश होने लगता है. एंड दैट्स व्हाई यू नीड अजाइल ट्रेनिंग, टेक इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, ये सब की जरूरत इसीलिए पड़ती है. ठीक. सो बिल्डिंग अडेप्टेबिलिटी विल इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन इवॉल्व एंड रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर चेंजेस. ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका ये हो गया. I think Niharika, we should discuss it till here because it's already 10 o'clock and I don't want to stretch it. मैं उसको ना ऐसे ही डिवाइड किया है, अगर आप देखो ना इसमें, so I have divided it like that.